خبر دیں آپ کو لیاقت باغ سے، جہاں راولپنڈی میں احتجاج ہو رہا ہے۔ پی ٹی آئی کے 58 رہنماؤں کے خلاف مقدمات درج کیے گئے۔ دہشت گردی کی دفعات شامل مقدمات تھانہ سٹی، تھانہ وارث خان، تھانہ نیو ٹاؤن اور تھانہ آرے بازار میں درج کیے گئے، جس میں سے معاویہ طاہر، شہریار ریاض، اعجاز خان جازی، راشد حفیظ، اجمل صابر اور ناصر محفوظ کو نامزد کیا گیا ہے۔ مقدمے میں 150 نامعلوم افراد کو بھی نامزد کیا گیا۔ پولیس کی جانب سے مقدمے میں دہشت گردی، اقدام قتل، توڑ پھوڑ، کار سرکار میں مداخلت کی دفعات شامل کی گئی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کہتے ہیں اب کوئی راستہ نہیں بچا، باضابطہ انقلاب کا اعلان کرتا ہوں، اس کے بعد ہم پر ایک گولی چلائی گئی تو 10 گولیاں چلائیں گے، ایک شیل اور لاٹھی ماری گئی تو ہم 10 ماریں گے۔ ہمارے 3 کارکنوں کو گولیاں مار دی گئی، شیل برسا کر 50 سے زیادہ کارکنوں کو زخمی کیا گیا۔ پنجاب پولیس کے کئی اہلکار ہتھے چڑھے لیکن میں نے ان کو ریسکیو کیا۔ تمام ادارے سائٹ پر ہو جائیں، عوام کے فیصلے عوام کو کرنے دیں، سیاسی فیصلے سیاستدانوں کو کرنے دیں، ادارے بیچ میں نہ آئیں اور پھر دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ ہمارے 2 کارکنوں کو گولیاں ماری گئی، تیسرے کارکن کو گولی لگی، اس کا پتہ نہیں چل رہا۔ اسٹریٹ شیل مار کے 50 سے زیادہ کارکن ہمارے زخمی ہیں۔ شیل پہ شیل یہ مارتے رہے، گولیاں برساتے رہے، سٹن گرنیڈ پھینکتے رہے۔ کئی پولیس والے آج ہمارے ہتھے چڑھے ہم پہ ظلم کرنے کے بعد، اور میں نے ان کو ریسکیو کیا کیونکہ مجھے اور ہمارے لوگوں کو ان کی فیملی سے خیال تھا۔ اگر کوئی گولی برسائے گا اس پہ گولی برسائی جائے گی، تم ایک گولی چلاؤ گے ہم 10 چلائیں گے، تم ایک ٹیئر گیس مارو گے ہم 10 ماریں گے، تم ایک لاٹھی مارو گے ہم 10 ماریں گے۔ میں اعلان کر رہا ہوں یہاں پر پاکستان کے تمام اداروں کو، تو سائڈ پہ ہو جائیں، عوام کو فیصلے عوام میں کرنے دیں، سیاسی فیصلے سیاسی فکروں کو کرنے دیں، بیچ میں نہ آئیں، اور پھر دیکھیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتے ہیں پی ٹی آئی قیادت صرف ایکس پر انقلاب لانے میں لگی ہے۔ گنڈا پور خیبر پختونخوا اور پنجاب کو لڑانا چاہتے ہیں۔ پنجاب کے عوام نے پی ٹی آئی کی ہر طرح کی سیاست کو مسترد کیا۔ گنڈا پور نے گولیاں مارنے کا بیان دیا۔ اس طرح کی جگتیں سوشل میڈیا پر چلتی ہیں۔ پنجاب میں علی امین گنڈا پور کی غنڈہ گردی نہیں چلے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے عوام صوبے کا تحفظ کرنا چاہتی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے احتجاج کرنا ہے تو اپنے صوبے میں کریں۔ کل ان کے پاس اسلحہ تھا، پولیس کے کئی اہلکاروں کو زخمی کیا گیا۔ جو کل گنڈا پور نے بیان دیا ہے کہ وہ گولیاں مارے گا اور وہ پتہ نہیں کیا کیا کرے گا، گنڈا پور صاحب یہ اس قسم کی حرکتیں، سستی جگتیں اور یہ سستی اداکاری جو ہے نا، یہ آپ کے سوشل میڈیا پہ چلتی ہوگی۔ کل آپ کو اللہ کے فضل سے جو ہے وہ آپ کو منہ توڑ جواب ملا ہے۔ خیبر پختونخوا کا چیف منسٹر کر رہا ہے کہ خیبر پختونخوا کے پختونوں کو اور پنجابیوں کو لڑا دیا جائے، کہ پنجاب نے ان کے ہر ایک ایونٹ پہ ان کو ریجیکٹ کیا ہے۔ آپ خیبر پختونخوا میں احتجاج کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ نے احتجاج ہی کرنا ہے نا۔ جو آپ نے قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت پنجاب میں نہیں ہے۔ پنجاب میں بدماشی، پنجاب میں غنڈہ گردی، پنجاب میں دہشت گردی نہیں چلے گی، اور جو یہ کرنے کی کوشش کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھرپور جواب ملے گا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنی نے کہا ہے کہ کے پی میں امن کی گھمبیر صورتحال ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جلسے جلوس ناچ گانے سے فارغ ہوں تو امن و امان پر توجہ دیں، حکومتی رٹ نہ ہونے کے برابر ہے۔ بتایا جائے صوبے میں بدامنی کس نے پھیلائی؟ امن و امان سے متعلق اجلاس فوج کو گالیاں دینے کے لیے بلایا گیا۔ ایک نعرے پر خیبر پختونخوا حکومت چری اور وہ ہے کرپشن کرپشن کرپشن۔ یہ اسپتالوں اور گندم کی کرپشن میں ملوث۔ آج بلین ٹریز کہاں گئے؟ ان کا لیڈر گھڑیاں بیچتا ہے، فرانس تک منی ٹریل کا حساب ہوگا۔ آج ایک نعرے پہ خیبر پختونخوا کی حکومت چل رہی ہے اور وہ ہے کرپشن کرپشن کرپشن۔ آج آپ نے سنا ہوگا ایک زمانے میں جہاں پر عمران خان سے لے کے ان کے ورثہ کہہ رہے تھے کہ آپ درخت لگا رہے ہیں اور بلین ٹریز، آج وہ بلین ٹریز کدھر چلے گئے ہیں؟ آج یہی حکومت نے اس کو ٹمبر مافیا کیا تو بیچ دیے۔ گندم کی بات آتی ہے تو یہ اس میں ہے، اگر اسپتالوں کی بات آتی ہے اس کے کرپشن میں یہ ملوث ہوتے ہیں۔ پی ٹی آئی کارکنوں پر شیلنگ، خیبر پختونخوا حکومت کا قانونی کارروائی کا فیصلہ۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں پی ٹی آئی کارکنوں پر براہ راست شیلنگ اور فائرنگ کی گئی۔ کے پی حکومت عدالت جائے گی، ایڈوکیٹ جنرل کے پی سے قانونی کارروائی سے متعلق کہا جائے گا۔
बैरिस्टर सैफ ने कहा कि जाली हुकूमत ने कल मॉडल टाउन जैसे सानहे का प्रोग्राम बनाया था। रावलपिंडी शहर और मोटरवे मकबूजा कश्मीर का मंजर पेश कर रहा था। एक जाली राजकुमारी की हुक्मरानी में पीटीआई खवातीन पर शेलिंग की गई। मरीम नवाज तैयारी पकड़े। अगले हफ्ते अली अमीन गंडापुर फिर पंजाब आकर एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि पीटीआई की खवातीन कारकुनान खराज तहसीन की मुस्तहिक हैं। बदतरीन मार्शल लॉ में भी इस तरह की फस्तायत नहीं होती थी। जाली हुकूमत फस्तायत का रिकॉर्ड तोड़ रही है। पीटीआई सिंध के सदर हलीम आदिल शेख के घर भारी पुलिस पहुंच गई। 5 से 6 पुलिस मोबाइल गाड़ियों में पुलिस और सादा कपड़ों में लोग शामिल हैं। हलीम आदिल शेख घर में मौजूद नहीं थे। पुलिस हलीम आदिल शेख के घर में सर्चिंग इस वक्त कर रही है। हलीम आदिल शेख पीटीआई चेयरमैन की आजादी के लिए निकाली जाने वाली रैली के लिए निकल चुके थे। मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे नबील अहमद जज से। नबील, बताएगा इस वक्त की क्या सूरत हाल है? जी देखें, पीटीआई सिंध के सदर हैं हलीम आदिल शेख के पर घर पर पुलिस का छापा। 5 से 6 पुलिस मोबाइल गाड़ियों में पुलिस और सादा कपड़ों में लोग शामिल है। पुलिस की भारी नफरी हलीम आदिल शेख के घर में दाखिल हो गई है। हलीम आदिल शेख घर में मौजूद नहीं थे। भारी पुलिस की नफरी हलीम आदिल शेख के घर में सर्चिंग कर रही है। पुलिस की जानिब से पीटीआई सिंध के सदर हलीम आदिल शेख के घर पर पुलिस छापे की मजम्मत करते हैं। तर्जुमान से कहना है कि पुरअमन एहतजाज करना हर शहरी की कानूनी हक है और पुलिस ने आज कराची की एहतजाज को रोकने के लिए छापा मारा है। सिंध में पीपल्स पार्टी की जमहूरी हुकूमत नहीं डिक्टेटरशिप है। पुलिस को के गैर कानूनी कार्रवाई से खौफजदा नहीं होंगे। कराची में आज एहतजाज होगा। कारकुनान प्रेस क्लब पहुंचे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के सदर हलीम आदिल शेख के घर पर पुलिस का छापा हुआ है। पुलिस हलीम आदिल शेख के स्टेडियम रोड पर वाक़े घर पर पहुंच गए हैं। पुलिस की जानिब से घर की तलाशी ली गई। हलीम आदिल शेख पीटीआई चेयरमैन की आजादी के लिए निकाली जाने वाली रैली के लिए निकल चुके थे। दरिया का कहना है कि हलीम आदिल शेख की अदम मौजूदगी के बावजूद पुलिस की जो नफरी है घर के बाहर तैनात कर दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची डिवीजन की जानिब से आज कराची प्रेस क्लब से और मज़ार कायद तक रैली निकाली जाने का इम्कान है। जी हलीम आदिल शेख घर पर मौजूद नहीं थे जबकि सर्चिंग की जा रही है। बहुत शुक्रिया नबील मिर्जात। जजेस किसी भी नई अदालत का हिस्सा नहीं बने। नई अदालत की हैसियत पीसीओ कोर्ट जैसी होगी। 300 से ज्यादा बुकला का सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस के नाम खुला खत में कहा गया कि नई अदालत के जज बनने वाले पीसीओ जजेस से मुख्तलिफ नहीं होंगे। मुजवजा तरामीम का ड्राफ्ट रात की तारीकी में सामने आया। नंबर पूरे करने वाले मुंतखब नुमाइंदे ड्राफ्ट से भी नावाकिफ थे। मुजवजा आईनी तरामीम को हमारी हिमायत हासिल नहीं। आईनी तरामीम पर मुल्क में मौसर बहस नहीं कराएगी। सिर्फ ये कहा जा रहा है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में आईनी अदालत का जिक्र है। जेजुआई के मरकजी जनरल कौंसिल के तमाम अरकान ने मुतफिका तौर पर मौलाना फजलुर रहमान को 5 साल के लिए बिला मुकाबला अमीर और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को बिला मुकाबला जनरल सेक्रेटरी मुंतखब कर दिया। खबर दें आपको, मौलाना फजलुर रहमान जमीयत उलमा इस्लाम के बिला मुकाबला अमीर मुंतखब हो चुके हैं। मजीद जानते हैं मोहम्मद फयाज से। जी फयाज, बताइएगा। जी बिल्कुल, जमीयत उलमा इस्लाम के इंतखा पार्टी इंतखाबात जो है आज पेशावर में हुए। मुफ्ती महमूद मरकज में होने वाले इंतखाबात में पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा और दीगर जो सूबे है पंजाब सिंध और गिलगित-बल्तिस्तान वगैरह इस्लामाबाद से तकरीबन 1500 के करीब जो मजलिस अमूमी के अराकीन थे उन्होंने अपना हक राय इस्तेमाल किया और इस सिलसिले में मौलाना फजलुर रहमान को जो है मजीद 5 साल के लिए मरकजी अमीर जो है वो चुन लिया। जो क्योंकि इनके मुकाबले में कोई भी उम्मीदवार सामने नहीं है और वो बिला मुकाबला मरकजी अमीर जो है मुंतखब हो गए। इसी तरह जनरल सेक्रेटरी के ओहदे के लिए जो है अब्दुल गफूर हैदरी जो है वो मुंतखब किए गए हैं और दोनों को जो है बिला मुकाबला मुंतखब किया गया है। जी बहुत शुक्रिया फयाज। मुल्तान के इलाके गुलगश्त में कम उम्र चोरों की अनोखी वारदात। दुकान की छत तोड़कर अपने साइज और पसंद के महंगे जूते लेकर फरार। कम उम्र नामालूम चोरों की वारदात की सीसीटीवी फुटेज एबीएन न्यूज को मौसूल हो चुकी है। फुटेज में 2 नामालूम चोरों को जूते पहनकर चेक करते हुए देखा जा सकता है। आपको खबर दे रहे हैं, फुटेज में देखा जा सकता है किस तरह चोर जो है वो चोरी कर रहे हैं और जूते अपने पसंद और साइज के देख रहे हैं और उसके बाद वो चोरी करके फरार हो जाते हैं। फुटेज एबीएन न्यूज को मौसूल हो चुकी है। कम उम्र ये चोर हैं जो कि दुकान में दाखिल होते हैं और उसके बाद अपना साइज और पसंद के जूतों को पसंद करके फरार हो जाते हैं। चोर दुकान की छत तोड़कर अपनी पसंद और साइज के महंगे जूते लेकर फरार हो गए। दिलजेब आकाश हमारे साथ मौजूद है। जी दिलजेब। जी बिल्कुल, मुल्तान में अनोखी चोरी की वारदात सामने आई है कि छोटे बच्चे जो है वो चोरी करने गए और जूता जो है वो पसंद करते रहे और देखा जा सकता है कि फुटेज में बाकायदा के चोरी करते हुए जो है वो
जूते उसको देखने लग गए और पसंद करने लग गए और चोरी को जो एक सर कर दिया। चोरी की जो वारदात है ये खास तौर पे छत के ऊपर से जो है ये बच्चे अंदर घुसे हैं दुकान के अंदर, इन्होंने चोरी की वारदात की। उसके बाद जो है मेन काउंटर से लाखों रुपए नकदी भी जो है इन्होंने चोरी की। इसके साथ साथ सीसीटीवी फुटेज में इनकी शक्लें भी जो है वो वाज़िया देखी जा सकती हैं। पुलिस ने जो है इस वक्त कार्रवाई का अमल जो है वो शुरू कर दी है, कार्रवाई की जा रही है। बहुत शुक्रिया दिलसेब। एफआईए साइबर क्राइम ने मुजफ्फरगढ़ और लूधरा में कार्रवाई करते हुए मुल्की और गैर मुल्की 7 लोगों से करोड़ों रुपए बटोरने वाले मुनज़्ज़म गैंग के 3 अफराद को गिरफ्तार किया। मुल्ज़िमान के कब्जे से करोड़ों रुपए मालियत की कीमती गाड़ियां भी जब्त की गईं। मुल्ज़िमान पाकिस्तान और इंडिया में 7 लोगों को इनामी रकम का लालच देकर करोड़ों रुपए बटोर चुके हैं। मुल्ज़िमान इंडिया से रकम दुबई और फिर पाकिस्तान में हुंडी हवाला के जरिए सजाद से मंगवाते थे। आपको खबर दे रहे हैं करोड़ों रुपए बटोरने वाले एफआईए साइबर क्राइम की मुजफ्फरगढ़ और लोधरा में कार्रवाई की जा रही है। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ मुल्तान अख्तर शेख से। अख्तर, इस मामले की तफसीलात से आगाह करें। जी बिल्कुल, 7 लोगों से करोड़ रुपए बटोरने वाले मुलज़्ज़म गैंग के 3 अफराद को एफआईए मुल्तान ने गिरफ्तार किया और ये गिरफ्तारियां मुजफ्फरगढ़ और लोधरा से अमल में लाई गई हैं। इन गिरफ्तार अफराद का ताल्लुक एक और गिरोह के साथ है जिसके जो अरकान हैं उसमें असगर, अली और अकरम शामिल हैं। इस वाले से आपको बताते चलें कि ये जो मुल्तान के अलावा इंडिया में भी जो लोगों को इनामी रकूम का लालच देकर उनसे रकूम बटोरता था और ये नेटवर्क दुबई, पाकिस्तान और इंडिया के कुछ इलाकों में भी फैला हुआ बताया गया है। एफआईए साइबर क्राइम का कहना है कि 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ मुल्तान अख्तर शेख इस मामले की तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कराची के इलाके न्यू अलबख्श में पीने के पानी की अदम दस्तयाबी के खिलाफ इलाका मकीनों ने डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब मलीर तक एहतजाजी रैली निकाली। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जबकि इंतजामिया से मुतालबात पूरे करने का मुतालबा किया गया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा एबीएन न्यूज नबील मीरजत से। जी नबील, तफसीलात से आगाह करें। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब मलीर पर, जहां पर यूसीपीपी के इलाके अलाबख्श हिमायती गांव के जो रहवासी हैं उन्होंने पानी की शार्टेज के खिलाफ जो है डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब मलीर पर एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। आइए मुजाहरे में शरीक इनसे बातचीत करते हैं कि मजीद उनके क्या मुतालबात है। हमारा मुतालबा ये है, तकरीबन 4 साल से ये गोठ बना है अलाबख्श के हिमायती गोठ में। पानी की बहुत बुरहान है। एक बंदा तकरीबन 2-3 हज़ार फुट पैंप लेके जाता है एक बंदा, फिर वो एक दिन के बाद लगा के आता है, दूसरे दिन उसका पैंप गुम हो जाता है। मुतालबा ये बराए मेहरबानी जो लेन इसमें 3 इंच की लगी हुई है या नहीं लगी हुई है हमारे को नया कनेक्शन लगा के दें। इलाके वाले बहुत तकरीबन महीने से परेशान हैं। हमारा मुतालबा ये है कि हमारे को पानी चाहिए। मुजाहिरीन की बात सुनी। मुजाहिरीन ने आला अख्तियारों से मुतालबा किया है कि यूसीपीपी समेत अलाबख्श हिमायती समेत मुख्तलिफ इलाकों में पानी की शार्टेज है, उनको पानी को शार्टेज को फिलफोर जो है ख़त्म किया जाए और आवाम को जो है बेहतर ज़िंदगी सहूलियात और पानी की जो फराहमी है उनको जल्द से जल्द बहाल किया जाए।